Hello guys, today's topic is hashing. So hashing is basically a searching technique. You have studied two types of searching technique. One is linear search and other is binary search. So in linear search, a array is provided to you and the elements in this array are arranged in some random order, and we want to search an element in this given array. So to search an element, in worst case, we have to compare all the elements in this array. So this will take order of n time in order to search an element. Okay. The another searching technique is binary search. In binary search, the elements of a given array are stored in a sorted order. It may be in the ascending order or it may be in the descending order. So whenever a query is given to us to search an element in the given array, then we are going to search that element by comparing the element with the mid element of the array, and we will look if the element is lesser than the current element, then we will look at the left part of the array, otherwise we will look at the right part of the array. Okay, so in either case only any half of the array will be searched. This will results in order of log n time of time complexity. So can we do better? This is the question. We have two searching techniques. One searching technique gives us order of n time. Another searching technique gives us order of log n time. Now we are going to improve the searching techniques in our data structure. So hashing is a one of the idea behind the hashing is to improve the searching technique, and our motive to propose the hashing technique is to propose an algorithm which will give the searching which will give the response to our query of searching in order of one time or constant time. Okay, so we want to look for a method or search method with a constant time. So we are focusing on hashing. Okay, जो हैशिंग में हम सबसे बेसिक अप्रोच जो हम फॉलो करते हैं हैशिंग के अंदर, वो हम ये क्या करते हैं कि लाइक द की वैल्यूज़ आर वर्कड एज ए इंडेक्सेस ऑफ द एरे. ओके, क्योंकि अगर हमने इस तरह का कोई एरे बना लिया, सपोज ये हमारे पास एरे है. ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and suppose this is array. Okay, so if we store the elements or the key values on the index locations which is similar to the key value. Okay, जैसे कि अगर 3 को स्टोर करना है तो 3 को हम कौन से इंडेक्स पे स्टोर करेंगे? थर्ड इंडेक्स पे. अगर आपको 7 को स्टोर करना है तो 7 को हम कहाँ स्टोर करेंगे? 7th इंडेक्स पे. सिमिलरली फॉर 10 वी स्टोर एट 10th इंडेक्स. 5 को हम 5th इंडेक्स पे स्टोर करेंगे. 2 को हम सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर करेंगे और 9 को हम 9th इंडेक्स पे स्टोर करेंगे. सो इन दिस वे जब भी हमसे कोई पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि दैट सर्च द एलिमेंट 5, then what we have to do? We have to go to the index 5 and the element is found. ओके, सिमिलरली अगर आपको कहा जाए 9 को ढूंढिए तो 9th इंडेक्स पे जाओगे और 9 मिल जाएगा आपको. सो दिस इज द बेस्ट हैशिंग टेक्निक एंड इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम. यू जस्ट गो जंप टू द इंडेक्स एंड द वैल्यू इज फाउंड. So what is the problem with this technique, with this hashing technique? The problem is if the key element which is provided to you is 50, then you have to extend this array up to 50th location and store 50 in that location. So in this way the time complexity of the algorithm is very much high.
oh sorry, the space complexity is very much high. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी ऑर्डर ऑफ 1 हो गई, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई that we cannot afford this algorithm much because we have a limited space also. Okay, so to improve this hashing technique, we have to improve the hashing based on some functions. So जो हम hashing define करते हैं वो कुछ functions के हिसाब से करते हैं. We call those functions as hash functions. Okay, and the list of element which are given, जो कि हमें स्टोर करने हैं, we call those list of elements as a key space, जहाँ पे हमारे बहुत सारी कीज हमें गिवन होती है. और जहाँ पे हमें ये की स्पेस या की इसको स्टोर करना होता है, वी कॉल दैट स्टोरेज एज अ हैश टेबल. Okay, so these are the basic terminology in hashing. Okay, so let's take an example of having some key space and try to design a hash table based on that key space. So suppose these are the key spaces, which is we take only 4 keys and we make a hash table. Hash table का मतलब एक array ही ले लिया हमने, and we are going to map these keys into this hash table using a defined hash function. And this is the hash function h of x is equal to x. ये hash function क्या है कि if you want to store x key, then the address of this key is given by this function h of x. And what is that address? The address is that key value only. Okay, तो ये वही फंक्शन है जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में किया था. ठीक है, जस्ट उसको फंक्शन की तरह से हमने लिख दिया है. सो वी जस्ट ट्राई टू मैप बेस्ड ऑन दिस फंक्शन, वी ट्राई टू मैप दिस की वैल्यूज इनटू हैश टेबल. तो 7 को अगर आपको स्टोर करना है तो 7 h of 7 क्या होगा? h of 7 क्या होगा? 7. तो 7th इंडेक्स पे आप 7 को स्टोर करेंगे. तो दिस इज द 7th इंडेक्स, वी स्टोर 7 हियर. ओके, सिमिलरली फॉर 10 we use x, we store 10 here. 4 is stored at 4th index, यहाँ पे आप स्टोर कर देंगे, और 5 को आप 5th इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे. Okay, so what is the problem in this case? The hash table is too large, which will increase the space complexity of the algorithm. So we need to modify the hash function in order to increase the in order to overcome the problem of space complexity. Okay, so a modified hash function is proposed. Instead of directly storing the key values based on the key as index value, we are going to calculate the address of that key value by this. X is equal, h of x is equal to x modulus size of hash table. ओके, सो आप जितनी भी हैश टेबल का साइज रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग या उसी एड्रेस स्पेस में से आपको ये बेस्ड ऑन दिस की वैल्यू एड्रेस लोकेशन फाइंड आउट करके देगा दिस फंक्शन. ओके, क्योंकि अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड है और उसी स्पेस में आपको सारी की सारी की मैप करनी है, तो सबसे अच्छा जो फंक्शन है वो है मॉड्यूलस फंक्शन. क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जो वैल्यूज जनरेट करेगा, दोज वैल्यूज आर इन द रेंज ऑफ दिस जो भी आप साइज पास करेंगे. ओके, सो in this case let's try to fill this hash table based on this function, that is the updated function. So these are the key spaces, key values in the key space. और जो अपडेटेड हमारा इस फंक्शन था वो क्या था? की वैल्यू मॉडुलस साइज ऑफ द हैश टेबल. तो अभी साइज कितना है हैश टेबल का? अभी साइज हमें मिल रहा है 12. ओके, क्योंकि इसमें 12 कीज आ सकती हैं, 12 की अकोमोडेट हो सकती हैं, 12 की का स्पेस अवेलेबल है. तो द साइज ऑफ हैश टेबल इज 12. सो एक एक करके इसका एड्रेस निकालने की कोशिश करते हैं. 7th की का एड्रेस h of 7 इज इक्वल टू 7 मॉडुलस द साइज ऑफ हैश टेबल विच इज 12. ओके, सो इट इज़ नथिंग बट 7 ओनली. तो 7 को हम डायरेक्टली कहाँ पे स्टोर कर देंगे? 7th लोकेशन पे. तो 7th लोकेशन हमारी कहाँ है? यहाँ पे. यहाँ पे आपका 7 स्टोर हो गया. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 23 है. सो 23 को हम कहाँ स्टोर करेंगे? एच ऑफ 23. एच ऑफ 23 इज इक्वल टू 23 मॉडुलस 12. Okay, so the remainder is it comes out to be 11. Okay, the remainder is 11, so we can store this key to 11 location, so it is 23. Okay, now h of 13 mod 11 12, sorry, so it is first location. We store this key as a first location. Then to store 5 mod 12 at fifth location we can store it. Where is fifth location? Okay, 3 is also stored at third location, and 10 is stored at the 10th location. There is no problem in that. Okay, okay, now if you want to store, suppose uh, if you want to store 1, okay, let's say you want to store one more key 1. So for 1, h of 1 is equal to 1 modulus 12, which is 1. So the first key is stored at the which location? 1 index location, but at this location there is a key which is already stored. Okay, so this is called collision. अगर हैश टेबल का साइज आप रिड्यूस कर रहे हैं और द की स्पेस इज सेम, की स्पेस अगर उतना ही है या की स्पेस बढ़ता है, देन ऑब्वियसली कॉलिजन्स आएंगे. ओके, सो इट इज़ अ नेचुरल कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है और जो की स्पेस है वो ज़्यादा है, या की स्पेस में कुछ की वैल्यू ऐसी हैं जो कि एक ही लोकेशन पे बार बार स्टोर हो रही है थ्रू दिस हैश फंक्शन. ओके, in that case there may be a high chances of collision. So in hashing, to remove collisions, various methods have been proposed. Okay, so let's see how many methods are there in to remove the collisions in hashing. सो कोलिजन रिजोल्यूशन के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं हैशिंग में. So we can divide our collision resolution method in two types. One is known as open hashing methods, और open hashing को हम closed addressing भी बोल देते हैं, या फिर closed hashing method जिनको हम open addressing method से बोल देते हैं. So in open hashing only one method is there, that is chaining method, and in closed hashing there are three methods available. One is linear probing, quadratic probing and double hashing. So let's डिस्कस ईच मेथड वन बाय वन. सबसे पहले चेनिंग मेथड को हम डिस्कस करेंगे. सो इन चेनिंग मेथड, सपोज these are the key spaces which we want to store in a hash table. हैश टेबल का साइज यहाँ पे हमने अभी छोटा रखा हुआ है, 9 स्पेसिस है हमारे पास टोटल. ओके, सो 0 to 8 there are total 9 spaces in this hash table. So let's try to map these key elements into these spaces. Okay, so let's calculate the address of h of 8. सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास 8 है, तो 8 के लिए हम क्या रखेंगे? द की वैल्यू m% और मोड विद द साइज ऑफ द हैश टेबल. साइज कितना है? 9 पोजिशन है, 9 स्लॉट्स हैं हमारे पास, तो टोटल स्लॉट्स 9 हम यहाँ पे रख देंगे. सो एड्रेस कितना है? 8 आया. सो 8th लोकेशन पे हमारा 8 स्टोर हो गया. ठीक है, फिर h of 17, अगेन 17 mod 9. So 17 mod 9 means it is also 8. Okay, so okay, so in chaining method what we do, instead of storing the key element directly at the index location, we create a linked list. At that index, and at this linked list we store the element. Okay, so previous element is stored in a linked list at the first position, then the second value or second key value also have the address location as 8.
So we just link this element into the same linked list. At the end we are append the element which is newly came. ठीक है. सो जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएंगे, अगर सेम लोकेशन आपकी मिलती है तो उसी लोकेशन में हम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे. तो आगे कैलकुलेट करते हैं. एच ऑफ वन कितना रहेगा? एच ऑफ वन कितना रहेगा आपका? एच ऑफ वन के लिए it is 1 modulus 9 means it is 1 only. So यहाँ पे जो 1 लोकेशन है यहाँ पे ये 9 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, ये आपका 9 स्टोर हो गया. ओके. उसके बाद आपका चलता है नेक्स्ट 18. सो एच ऑफ 18 कितना रहेगा? एच ऑफ 18 इज इक्वल टू 18 9. सो इट इज़ 0. इट इज़ टोटली डिविजिबल. सो 0th लोकेशन पे हम यहाँ पे 18th को स्टोर कर देंगे. ओके. देन आफ्टर दिस नेक्स्ट एलिमेंट इज 19. सो 19 9 and the remainder is 1. So we append the 19 here at first location. Then we insert 3. 3 is directly inserted. So we create a linked list and insert 3. Okay. So in chaining method generally क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टी लिस्ट स्ट्रक्चर. आपने मल्टी लिस्ट पहले भी पढ़ा हुआ है. सो वी जस्ट क्रिएट अ मल्टी लिस्ट जिसमें जो हेडर लिस्ट है आपकी वो इंडेक्सेस कंटेन कर रहा है कि किस इंडेक्स पे आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है या किस इंडेक्स पे आपको लिंक लिस्ट ग्रो करनी है. सो इन दिस वे द चेनिंग मेथड इज डिजाइंड. ओके. सो इससे हम कोलिजन को रिमूव तो नहीं किया बट वी आर ट्राई टू रिड्यूस द कोलिजन एज मच एज वी कैन. ओके. सो अगर आपके पास क्वेरी आती है इन दिस चेनिंग मेथड, आपने चेनिंग मेथड के थ्रू हैश टेबल को डिज़ाइन किया है एंड अ क्वेरी इज थ्रोन दैट सर्च फॉर द एलिमेंट 17 in your hash table. Then in order to search 17 first we calculate the address of 17 using this hash function. तो hash function के थ्रू आप कैसे निकालेंगे? This is your hash function 17 mod 9 and this will gives you the value 8. So you directly jump to the 8th position and then in this 8th position जो लिंक लिस्ट आपने अभी बनाई है यू हैव टू ट्रेवर्स दैट लिंक लिस्ट एंड सर्च फॉर द एलिमेंट 17. ओके. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट ऑर्डर ऑफ 1 एक्चुअली, इट इज मोर देन ऑर्डर ऑफ 1. क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 कब होता? अगर इसी लोकेशन पे हमें वो की एलिमेंट 17 मिल जाता. बट नहीं, यहाँ पे आपको की एलिमेंट नहीं मिला. यू हैव टू ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट और उस लिंक लिस्ट में जहाँ पे भी 17 होगा वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा. दैट्स वाई ऑफ 1 से ही ज़्यादा होगा. बट येस इट इज़ बेटर देन लोगन. बाइनरी सर्च तो अभी भी अच्छा है, तो लोगन से बेटर है. सो स्टिल वी हैव सम मीन्स वी कैन इम्प्रूव दिस चेनिंग मेथड एंड वी कैन इम्प्रूव दिस मेथड बाय इंट्रोड्यूसिंग सम मोर टाइप ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स. So let's discuss the another collision resolution technique. So in this linear probing method, the elements are stored using the same hash function. We assume that same hash function is used. अच्छा, जो ये हैश फंक्शन हम ले रहे हैं ये आप अभी हम फिलहाल x मॉडुलस साइज ऑफ ht ले रहे हैं, बट हैश फंक्शन कोई भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़र कि वो किस हैश के थ्रू एड्रेस कैलकुलेट कर रहा है. जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट हैश फंक्शंस होते हैं वो हम यही लेते हैं कि की के अकॉर्डिंग हमने उसको मॉडुलस ऑपरेशन के थ्रू उसका एड्रेस कैलकुलेट करना. ओके. सो ओके, लेट्स सी द लीनियर प्रोबिंग मेथड. इसमें हम क्या करेंगे? सपोज यू वांट टू स्टोर 7th एलिमेंट. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैश टेबल का साइज लिया है यहाँ पे हमने 10 ले लिया है. ओके. तो हैश टेबल का साइज 10 है. सो जो 7th एलिमेंट की पोजीशन है वो कितनी होगी? 7 एलिमेंट की पोजीशन 7 ही रहेगी. सो डायरेक्टली गो टू 7th लोकेशन. 7 को हम इसी लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं. यहाँ पे कोई चेनिंग फॉर्म नहीं कर रहे या कोई लिंक लिस्ट नहीं बना रहे, उसी लोकेशन पे हमने डायरेक्टली डाल दिया है. उसके बाद तो सेकेंड एलिमेंट आया 2 को भी हम डायरेक्टली उसी लोकेशन पर डाल देंगे. ठीक है.
and then the next element is 12, so 12 more 10, 2 is the remainder, so 2 लोकेशन इज ऑलरेडी फिल्ड, तो एक कॉलिजन हमें मिला। जो ये कॉलिजन मिल रहा है उसको प्रोब बोलते हैं। तो हाँ, अभी नंबर ऑफ प्रोब्स भी कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोब्स मिले या कितने प्रोब आए एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो 12 को स्टोर करने के लिए पहला कॉलिजन हमें यहाँ मिला, तो पहला प्रोब काउंट हो गया। अगर कोलिजन मिलता है देन यू गो टू द नेक्स्ट फ्री लोकेशन इन दिस एरे और इन दिस हैश टेबल। सो नेक्स्ट फ्री लोकेशन का मतलब नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है, एट इंडेक्स 3। सो इंडेक्स 3 पे हम 12 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो जनरली जो प्रोबिंग हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये सेकंड जब एलिमेंट स्टोर किया उसको भी एक प्रोब में काउंट कर लेते हैं। सो दिस इज सेकंड प्रोब। सो इन दिस in order to store 12th element we have 2 probes required। 2 के लिए 1, बाय डिफॉल्ट सभी एलिमेंट्स के लिए जो प्रोब रिक्वायर्ड होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि उसी लोकेशन पे जाके हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 5 को हमें स्टोर करना है, तो 5 लोकेशन ऑलरेडी फ्री है, तो 5 को हम डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं। 3 को स्टोर करना है 3, अब 3 ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो उसकी नेक्स्ट फ्री लोकेशन कौन सी है, 4th वाला, तो 4th पे जाके हम 3 को स्टोर कर देंगे। देन 9, सो 9 में हम जाके डायरेक्टली 9 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो इन द लीनियर प्रोबिंग मेथड वी जस्ट गो टू द लोकेशन, इंडेक्स लोकेशन। अगर इंडेक्स लोकेशन पर एलिमेंट नहीं है तो वी डायरेक्टली स्टोर इट, अदरवाइज वी गो टू द सर्च फॉर द नेक्स्ट फ्री लोकेशन। नाउ हाउ वी डिजाइन द हैश फंक्शन फॉर द सेम। सो द हैश फंक्शन इज calculated as, we name this hash function as h-x, okay। so h-x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो ताकि हम ये मेथड को फॉलो करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एड्रेस किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम हैश फंक्शन से जो हमारे पास पुराना वाला हैश फंक्शन है। उससे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। अगर वो एड्रेस फ्री मिलता है तो हम डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं, अदरवाइज हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, मतलब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लोकेशन, नेक्स्ट फ्री लोकेशन हम चूज करते हैं। तो फॉर द फाइंडिंग नेक्स्ट फ्री लोकेशन वी डिफाइन अ फंक्शन आई, ओके, और उसको उसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और जो भी हमारा वैल्यू आई दैट हैज़ टू बी इन द बाउंड्स ऑफ द साइज ऑफ द हैश टेबल, ओके। सो जहाँ जो यहाँ पे एफ ऑफ आई है वो आपके आई के इक्विवेलेंट होगा, मतलब इंडेक्स वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, और इंडेक्स वैल्यू आपकी कब से कहाँ तक चलेगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू चलती जाएंगी, ठीक है। सो इंडेक्स वैल्यू मतलब हमने पहले उसमें 0 का मतलब क्या है कि इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, एच ऑफ एक्स को ही हम देखेंगे पहले। 1 का मतलब क्या है कि एक इंडेक्स बढ़ा के फिर देखेंगे फ्री है कि नहीं, फिर अगर फ्री है देन इट इज़ ओके, अगर नहीं है तो 2, मतलब 2 इंडेक्स हम बढ़ा के देखेंगे कि फ्री है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कैलकुलेट करना है इंडेक्स लोकेशन ऑफ 12 यूजिंग अ न्यू हैश फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, द इंडेक्स लोकेशन ऑफ 12 यूजिंग अ ओल्ड हैश फंक्शन प्लस एफ ऑफ 0, इनिशियली 0 देखेंगे हम रख के, और मॉडुलस इसको रख देंगे 10, ठीक है। सो एच मोड 12 ओल्ड हैश फंक्शन से कितना रहेगा 2, प्लस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 रहेगी, एंड मोड 10। सो ये जो वैल्यू आई इसकी लोकेशन जो एड्रेस आया वो 2 आया, बट 2 पे ऑलरेडी वैल्यू स्टोर थी हमारी। सो हम क्या करेंगे, एच ऑफ 12 फिर से कैलकुलेट करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1, ओके। सो यहाँ पे एच ऑफ 12 की वैल्यू कितनी होगी 2, प्लस आई एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू होगी 1 मॉडुलस 10। सो 3 मॉडुलस 10 का मतलब 3, थर्ड लोकेशन पे हम क्या कर देंगे 12 को स्टोर कर देंगे, ओके। सो दिस इज द लीनियर प्रोबिंग मेथड, एक एक करके हम सब्सिक्वेंट लोकेशन ढूंढते जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इन दिस मेथड इज it will make a cluster of elements every time, okay। so this will increase the time complexity in searching, क्योंकि आपके एलिमेंट्स का क्लस्टर बन जाता है, और अगर एलिमेंट्स का क्लस्टर बन जाता है, और क्योंकि ये कंटिन्यूसली स्टोर हो गए हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा जब हम सर्चिंग मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ सपोज इफ अ सर्च क्वेरी इज गिवन एज you want to search for
5. द की इज 5. ओके, नाउ 5 को सर्च करना है, तो 5 को सर्च करने के लिए आप सिंपली इसका एड्रेस कैसे निकालेंगे, 5 mod 10. ओके, सो 5 mod 10 का मतलब फिफ्थ लोकेशन पे जाके हमें ये एलिमेंट मिल जाना चाहिए. ओके, सो फिफ्थ लोकेशन पे मिल गया, डायरेक्टली आपको एलिमेंट मिल गया, यू रिटर्न इट. बट इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, सपोज द की एलिमेंट इज 4, you want to search 4. Okay, I think 4 is not a key element. Okay, no problem. कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो की एलिमेंट आपका इसमें हो. फॉर एग्जांपल आप 12 लेते हैं. ओके, 12. सो 12 के लिए हैश फंक्शन क्या होगा, दिस इज अ हैश फंक्शन. सो एट इंडेक्स 2 12 मिलना चाहिए. सो आप इंडेक्स 2 पे गए, 12 इज नॉट फाउंड. सो आपने क्या किया, गो टू द नेक्स्ट लोकेशन. अगर नहीं मिला है तो गो टू द नेक्स्ट लोकेशन. सो नेक्स्ट लोकेशन क्या है, थर्ड लोकेशन. थर्ड लोकेशन पर आपने सर्च किया कि वेदर 12 इज देयर नॉट, यस 12 इज फाउंड. सो इन दिस वे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी आपकी ऑर्डर ऑफ 1 नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 से कुछ ज़्यादा है, बिकॉज यू हैव टू ट्रेवर्स इनसाइड द हैश टेबल. अगर आपका एलिमेंट बेस्ट केस क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, इंडेक्स वहीं पे मिल जाएगा. बट कॉलेजन के केस में बेस्ट केस होना बड़ा मुश्किल है. वो कुछ एलिमेंट्स के लिए ही पॉसिबल हो सकता है, सभी एलिमेंट्स के नहीं लिए नहीं हो सकता. सो इन दैट वे क्या करना होगा, हमें उस हैश टेबल में आगे बढ़ के सर्च करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स है या नहीं. अब एक और एलिमेंट्स हम सर्च करते हैं. सपोज की एलिमेंट्स आपका आ जाता है 24. अब 24 हमारे की स्पेस में नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड आना चाहिए. ठीक है, सो 24 का अगर हम एड्रेस निकालें तो क्या आएगा, 4. ठीक है, 24 mod 10. सो द वैल्यू इज 4. फोर्थ लोकेशन पे क्या मिला हमें, 3. तो यहाँ पे तो नहीं मिला, नेक्स्ट लोकेशन पे सर्च करेंगे, 5 मिला. तो ये भी आपका 24 एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट लोकेशन पे सर्च करेंगे, जैसे ही आपको कोई एम्प्टी लोकेशन मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आपकी एम्प्टी लोकेशन है, देन वी रिटर्न दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड. ठीक है, सो आई थिंक एल्गोरिथम समझ में आ रही होगी आपको. अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है तो पहले हम उसका एड्रेस निकालेंगे, अगर एड्रेस पे नहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे. और कब तक देखेंगे, जब तक हमें कोई भी एम्प्टी लोकेशन नहीं मिलती. इन केस यू फाउंड एन एम्प्टी लोकेशन, इट मीन्स द एलिमेंट इज नॉट इन द हैश टेबल. And in case you found the element, then just return the location of the element at which location it is stored. Okay, so this is the linear probing method. But because of the it is storing the element in contiguous memory location, so to remove this drawback of linear probing, another technique is come into picture, and that technique is quadratic probing. Quadratic probing is very much similar to the linear probing, but with one difference, that in quadratic probing the function value is changed, the fi value is changed. We make the f of I is equal to I square. तो आई स्क्वायर होने से क्या होगा कि जो इसमें हम एडिशन कर रहे हैं फैक्टर का, वो बढ़ जाएगा. और अगर आपने वो फैक्टर बढ़ा दिया तो जो एड्रेस जनरेट होकर आएगा हैश फंक्शन के थ्रू, वो ज़्यादा आएगा, और जिससे कि आपके एलिमेंट्स या की स्पेसिस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी. तो जो पुराना ड्रॉबैक था हमारा लीनियर प्रोबिंग का, कि वो क्लस्टर्स बना देता है एलिमेंट्स का, कंटिन्यूस लोकेशंस पे एलिमेंट्स को स्टोर कर देता है, वो ड्रॉबैक आपका क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में रिमूव कर दिया गया है, या रिमूव करने की कोशिश की गई है. फॉर एग्जाम्पल, अब ये सपोज ये आपके की स्पेसिस है और ये आपकी हैश टेबल है. हैश टेबल का साइज़ हमने यहाँ पे 10 रखा हुआ है. ये की स्पेसिस एलिमेंट को एक एक करके स्टोर करते हैं. पहले सबसे पहले 7 आएगा, 7 आपने डायरेक्टली स्टोर कर दिया. एक दूसरा पेन ले लेता हूँ एक सेकेंड. सो 7 आपने तो यहाँ पे स्टोर कर दिया डायरेक्टली, एंड देन यू स्टोर 2. देन 12 के लिए 12 सेम इसी लोकेशन पे स्टोर होना था, बट लोकेशन ऑलरेडी बिजी है. तो आप ट्राई करेंगे एफ ऑफ 0 के साथ. 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो एच ऑफ एक्स 2 प्लस 0 सेम आएगा. 1 के साथ ट्राई करेंगे तो 2 प्लस 1 3. सो 3 लोकेशन, थर्ड लोकेशन पे हमारा ये स्टोर हो जाएगा 12. ओके, फिर 22.
22 फिर से आपका इसी लोकेशन पे जाके स्टोर होना चाहेगा। सो 22 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलो एक बार 22 का हम देख लेते हैं। 22 का अगर हमें एड्रेस निकालना होगा तो 22 का एड्रेस बेस्ड ऑन ओल्ड हैश फंक्शन कितना आएगा, 2 प्लस एफ ऑफ आई सबसे पहले ज़ीरो के लिए ट्राई करेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होगा, मॉड 10 कितना आ गया ये वैल्यू, 2 ओनली। ठीक है, 2 ऑलरेडी आपका बिजी है तो फिर से हैश कैलकुलेट करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 1, पुरानी वैल्यू 2 ही रहेगी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मॉड 10 विच इज़ इक्वल टू 3, 3 भी ऑलरेडी बिजी है। फिर से हम कैलकुलेट करेंगे 22 की वैल्यू को, 2 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 2, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 and mod 10, so 4 plus 2 6। now this is the difference। अगर यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग की बात करते तो हम सिंपली यहाँ पे 2 ऐड कर देते, 2 प्लस 2 4, फोर्थ लोकेशन पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। बट इन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वी आर गोइंग टू मेंटेन अ स्पेस बिटवीन द की एलिमेंट्स, सो सिक्स्थ लोकेशन पे आपका 22 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 42। अगेन फॉर द 42 ऑल्सो it is going try to store it in the second location but it is filled, so आपका फिर ये यहाँ पे जाएगा 42 केस में ये तीनों केस एज इट इज चलेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज 2। सो फॉर लोकेशन आई इज इक्वल टू 2 इट इज़ नॉट सक्सेसफुल क्योंकि आई इज इक्वल टू 2 भी आपका फिल हो चुका है। तो 42 केस में मैं डायरेक्टली आपका नेक्स्ट केस अप्लाई कर देता हूँ। सो द रिमाइंडर विद ओल्ड हैश इज 2 प्लस for I is equal to 3 it is 9 mod 10, so 9 plus 2 means 11, 11 mod 10 means 1, so at first location 42 is stored। okay, then next element is 10, 10 element means it is directly stored on the 0th location, okay, because it is already free। so this is the quadratic probing method। I hope you have understood चेनिंग, लीनियर प्रोबिंग एंड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मेथड। डबल हैशिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ये वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन तीनों मेथड्स का आइडिया और हैशिंग का थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डबल हैशिंग कॉन्सेप्ट एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑन द हैशिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।